So once again, very, very good evening to you all. Today we will discuss some of the important MCQs from the unit number 1, that is Introduction to Journalism and Mass Communication. So we are revising it here. So we'll not explain it more in detail. So we'll just go with the questions and answers, right? And please answers it fast as early as possible. Okay. Chaliye, identify the correct set of the normative theories as formulated by the Siebert. So normative theories किसने दिया? 3 लोगों का नाम इसमें आता है normative theories के अंदर. थियोडोर पीटरसन, राइट, सीबर्ट एंड द विल्बर्स रैम. सो प्लीज नाम याद रखिएगा नॉर्मेटिव थ्योरीज देने वाले लोगों का नाम, और साथ ही साथ सीक्वेंस में ये अरेंज करना है, आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट. एंड व्हाट द राइट आंसर दैट यू ऑल हैव गिवन, दैट इज ए. ऑथोरिटेरियन, राइट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑथोरिटेरियन, राइट, देन लिबर्टेरियन, देन सोवियत मीडिया, देन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो आंसर इट इज ए. Question number 2, identify the correct sequence of the normative theories that suggested in the book Four Theories of the Press. everyone, सीक्वेंस में आपको नॉर्मेटिव थ्योरी से रिलेटेड अगेन क्वेश्चंस है जो आपको पूछा गया है. फोर थ्योरीज ऑफ द प्रेस, देन यू हैव टू राइट इन द करेक्ट सीक्वेंस. द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड. ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड होता है, प्लीज आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा. नॉर्मेटिव थ्योरी से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं. Very good. And all of you had answered, right? Some of you had answered B and some of you had answered C. Why it's so? So 1956 में नॉर्मेटिव थ्योरीज विल्बर्स रैम, थॉमस पीटरसन एंड सीबर्ट ने दिया था ये थ्योरीज. फोर थ्योरीज ऑफ द प्रेस बुक्स, एंड द फोर थ्योरीज ऑफ द प्रेस, दैट इज ऑथोरिटेरियन, लिबर्टेरियन, सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सोवियत कम्युनिस्ट, राइट. सो आपको अरेंज में सीक्वेंस अभी लास्ट क्वेश्चन आपने किया था, ध्यान में रखिए. या इधर बी या इधर सी. अब बी और सी में ऑथोरिटेरियन लिबर्टेरियन तो आपको पता है, बट अब आपको तय करना है कि कम्युनिस्ट मीडिया सोशल रिस्पांसिबिलिटी या सोशल रिस्पांसिबिलिटी कम्युनिस्ट मीडिया. So what is the right answer of this question? That is, अगर आप देखेंगे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट इज हेयर फर्स्ट, एंड देन सोवियत कम्युनिस्ट, एंड देन इट इज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरीज. ओके, इट्स क्लियर टू ऑल एवरीवन? क्लियर है? ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं. नॉर्मेटिव थ्योरीज से फिर से क्वेश्चंस है. नॉर्मेटिव थ्योरीज कंबाइनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द लिबर्टेरियनिज्म एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी इज. एवरीवन, नॉर्मेटिव थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, प्लीज ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. Normative theories combining aspects of the libertarianism and the social responsibility theory is Eastern belief, Latin American value, Western concepts, and the pluralism. Very good. The answer it is C. Western concepts is the right answer. All of you are answering B. I don't know why you are answering Latin American values. So this combining aspect of the libertarianism, ठीक है, yes, libertarianism और the social responsibility जो है ये Western concepts है. ठीक है, it is clear, this question is clear, everyone noted? Chaliye, all right. Now, laissez-faire doctrine is associated with which of the following normative theories? This is a basically doctrine मतलब documentations or documents that laissez-faire document is associated with the which one of the following. laissez-faire अगर आप सर्च करेंगे इसका मीनिंग तो आपको समझ में आएगा. दिस documentation is related to what? Yes. So two of the aspirants are answering and they are right. That is B, libertarian theories. Okay. So libertarian theories is that economic philosophy of the free market capitalism. Free की बात करता है, liberty की बात करता है. That's also talked about the laissez-faire. So laissez-faire is economic philosophy of the free market capitalism that opposes the government interventions. Right? किसी भी तरीके का government का intervention ना हो, interference ना हो, so हम capital को grow कर सकते हैं, market हम बढ़ा सकते हैं. चलिए next. Four theories of the phrase is conceived by the Wilbur Ram, Dennis Maxwell, Marshall McLuhan, James Carey. Four theories of the press. देखिए सारे नॉर्मेटिव थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन था जो हमने आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं. Four theories of the press is conceived by. Everyone answer. Very important question it is. Yes. So two of the aspirants, Chatra and Yani, has answered, and that is what the Wilbur Ram is the right answer. I have already discussed with you that three of the prominent scholars is with the normative theories: Wilbur Ram, Siebert, and Peterson's. Okay, remember these things. It's a very, very important. So these all are the questions from the normative theories you have to keep in mind and you have to note it. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. During which world war the bullet theory of the communication developed? किस वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है बुलेट थ्योरीज, जो मैजिक बुलेट थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं, वो डेवलप हुआ? फर्स्ट, सेकंड, गल्फ एंड कारगिल. यस.
So many of the aspirants are answering that is B. Absolutely right. During the Second World War, Second World War कब हुआ था? 1939 to 1945. ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1914 से 1919 and Second World War 1939 से 1945. So during the Second World War, this media plays a vital role in the United States as well as in the Germany, which made the influence in the people's mind. Germany, Hitler's Nazi used the film industry for the propaganda. They produced a lot of the movies about the achievements and they made a great impact in the Germans' mind. So during the Second World War, this magic bullet theory of communication was developed. It's very, very important. So this is basically the root of the theories and the models from where it has been come, right? So the rate of the adoption is normally measured by everyone. What is the right answer of the question? Diffusion of innovations अगर आपको पता है तो diffusion of innovations से question से Evert M. Rogers का. Everyone, what is the right of answer? Rate of adoptions जो किसी भी टेक्नोलॉजी किसी भी इनोवेशंस को अडॉप्ट करने का जो एक रेट है, दैट इज व्हाट it basically measured by what? And right answer that Chitra and Jani has answered, that is length of the time, right? So rate of the adoption is usually measured by the length of the time required for the certain percentage of the members of the system to adopt an innovations. ठीक है, एक टाइम लगता है जिसको हमने देखा होगा, एक ग्राफ बना होता है, ठीक है. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की थ्योरीज आप पढ़ेंगे तो उसमें एक ग्राफ है, दैट सबसे लास्ट वन क्या होता है एवरीवन? व्हाट इज द लास्ट स्टेज दैट जो किसी भी इनोवेशन जो है उन तक पहुंचती है? आपने पढ़ा होगा अर्ली अडॉप्टर्स, मेजॉरिटी अडॉप्टर्स, yes, and that is what laggards. ठीक है, laggards is the last one stages that rate of adoptions. Okay, very good. So ये पांचों स्टेज जो है ध्यान में रखेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये जो थ्योरी है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है और ये एवर्ट एम रोजर्स ने दिया था, उसके अंदर हम ये रेट ऑफ एडॉप्शंस पढ़ते हैं विच इज मेजर्ड बाय द लेंथ ऑफ द टाइम. उसमें हमें 5 स्टेजेस हैं, ठीक है, वो आपको 5 स्टेजेस याद रखने हैं. चलिए, हु इंट्रोड्यूस द गेट कीपिंग थ्योरीज? कर्ट लेविन, डेविड मैक्सवेल, विल्बर सैम, जोसेफ पुलिजर. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. चलिए, वेरी गुड. So right answer of this question is gatekeeping theories. चाहता it's not would be D, it's would be the A, right? A is the right answer. कर्ट लेविन ने दिया, यानी इसका मतलब है आप लोगों ने क्विक रिवीजन याद नहीं किया है. क्विक रिवीजन अगर याद किए होते तो ये मिस्टेक नहीं होता. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. गो विद द क्विक रिवीजन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इतने सारे इजी क्वेश्चंस मत छोड़िए. कंसेप्ट आपको रटाया हुआ चीजें ये सब क्वेश्चंस है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं. चीजें गेट कीपिंग थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस किया, ये एक तरीके का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है. कर्ट लेविन ने दिया 1947, who was a social psychologist. Okay, the first director general of the All India Radio, everyone. इसको तो आप बोलेंगे ना, कई बार आंसर कर चुके हैं. सो एवरीवन विल गिव द आंसर, आई नो दैट एस बुखारी. ओके, चलिए. द चेयर ऑफ द प्रेस काउंसिल इज अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ, कितने साल के लिए टर्म चेयरमैन? यस, क्या कर रहे हो आप लोग एवरीवन? यस, बी आंसर्स नहीं है, सी आंसर्स है, ठीक है. यस, everyone has given here most of the answers were towards the C. चलिए, बाकी से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन जो है ध्यान में रखेंगे. प्रेस काउंसिल कब आया, इसके चेयरमैन का पूरा लिस्ट आपको याद है? एवरीवन हैज रिमेंबर्ड द एंटायर लिस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का पूरा चेयरमैन आपको याद है फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट लेटेस्ट? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है? डू नॉट फॉरगेट. किन्हें किन्हें याद है याद कर लीजिएगा, जो जैसे भी हो तैसे भी हो याद जरूर कर लीजिएगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, ओके. नेक्स्ट, येलो जर्नलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट. येलो जर्नलिज्म से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. येलो जर्नलिज्म का बताइए, इंट्रोड्यूस किसने किया? ओके चैत्रा, आई हैव नोटेड योर पॉइंट्स एंड विल डेफिनेटली फॉलो दीज थिंग्स. ओके, चलिए. येलो जर्नलिज्म स्टार्टेड विद द जोसेफ पुलिजर. सेंसेशनलिज्म का कंसेप्ट जो है येलो जर्नलिज्म से. यस, वेरी गुड. आपको 2 न्यूज़पेपर सर्कुलेशन वॉर के कारण येलो जर्नलिज्म का कंसेप्ट निकल कर आया, और दोनों जो जर्नलिस्ट थे, जो न्यूज़पेपर के ऑनर थे, वो जोसेफ पुलिजर और दूसरा विलियम रैंडोल्फ फर्स्ट, राइट? जोसेफ पुलिजर का न्यूयॉर्क वर्ल्ड था और जो विलियम रैंडोल्फ फर्स्ट का न्यूयॉर्क जर्नल. ओके, यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ड्यूरिंग द सर्कुलेशन वॉर दिस कंसेप्ट वॉज अराइव्ड, ठीक है. और सेंसेशनलिज्म, द स्टाइल ऑफ द न्यूज़पेपर विच वॉज नॉट एज पर द एथिक्स ऑफ द जर्नलिज्म.
Yes, very good. चलिए, the name of the newspaper that Gandhi ji brought out to the South in Africa. साउथ अफ्रीका में जो न्यूज़पेपर आया, गांधी जी ने जो लेकर आया, वो कौन सा न्यूज़पेपर? यस, वेरी गुड, दैट इंडियन ओपिनियन, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1903। यस। टीआरपी जो क्या है? टीआरपी देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्यूअरशिप। ओके, एवरीवन हैज गिवन। चलिए, आईएसबीएन रेफर्स टू, आईएसबीएन क्या है यहाँ पे? यस, इंडियन और इंटरनेशनल में कंफ्यूज ना होना आप लोग, ठीक है? इंडियन और इंटरनेशनल में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? एंड द राइट आंसर इंटरनेशनल, नॉट इंडियन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी सी मिस्टेक के लिए बाद में पछतावा होगा, ठीक है? चलिए, एवरीवन आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। मेनी वॉइसेस वन वर्ल्ड, गुड टाइम्स बैड टाइम्स, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, साइलेंट लैंग्वेज। यस, करेक्ट पेयर कौन है इसमें से? वेरी गुड, दैट द A1 इज द करेक्ट आंसर, मेनी वॉइसेस वन वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द थ्री इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग मीडिया जो है मार्शल मैक्लुहान का है, साइलेंट लैंग्वेज एडवर्ड टी हॉल का है, गुड टाइम्स बैड टाइम्स जो है आपका हैरोल्ड एवांस का है। ओके, चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, बुक था। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एंड इट्स लैंग्वेज। न्यूज़पेपर का लैंग्वेज बताइए, कौन सा करेक्ट पेयर है इसमें? Yes, very good. In Adu, the newspaper which published in the Telugu language is the correct one, and rest of the all is also important. देशाभिमानी जो है वो आपका मलयालम में, yes, very good. In Adu तेलुगु, नव भारत जो है that is हिंदी, और थांती जो है that is, इसको डेली थांती बोलते हैं, that is in Tamil. Okay, yes, very good. Now two-step flow theory was propounded by, everyone answer. Two-step flow theory. Very good. टू स्टेप फ्लो थ्योरी, गलती मत कीजिए, शिखा शिखा नहीं नहीं, टू स्टेप फ्लो थ्योरीज। ओके ओके, हाँ आपने ए आंसर दिया, चलिए वेरी गुड, मुझे लगा कि डी आंसर आया। यस, वेरी गुड, दैट द राइट आंसर इज ए। इल्यूकास एंड पॉल लेजर्सफील्ड हैज गिवन दिस थ्योरीज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू स्टेप फ्लो थ्योरीज। इसमें दो स्टेप में कम्युनिकेशन जो है रिसीवर तक पहुंचती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टर्म है दैट इज ओपिनियन लीडर, ठीक है? ओपिनियन लीडर ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ये सब फोक डांसेस है, कौन सा इसमें से करेक्ट पेयर है? यस, वेरी गुड, यानी हैज आंसर्ड इट हियर, and that is what the right answer is, questions that is B, Tamil Nadu Vilupattu. Okay, so Vilupattu is the famous folk dance, right? Folk cultures of the Tamil Nadu, and the जो है आपका आल्हा which is of the मध्य प्रदेश, गरबा which is of the गुजरात, लावनी that is of the महाराष्ट्र। ओके, कर्नाटका जो है वो कन्नड़ है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी होता है, मतलब नौटंकी एक फोक कल्चर है। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इवोल्यूशन। एवरीवन, इसमें से आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया। देखिए, रेडियो रेडियो तो हटा दीजिए, ए और डी तो बिल्कुल से नहीं होगा, आइदर बी और सी। अब बी और सी में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन को इसमें दूर करना है। आपको क्या लगता है, रेडियो पहले आया या सिनेमा पहले आया? यस, एंड दैट इज व्हाट हियर द राइट आंसर, व्हिच इज everyone is giving some of the B, some of the C, right? So yes, अब आपको यहाँ पे देखना है कि साउंड के पहले आया या फिर विजुअल्स पहले आया, ठीक है? तो इसको आप देखेंगे, अगर आप इसके पीछे स्टडीज करेंगे तो आपको थोड़ा सा, अगर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखेंगे, पूरा वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में और इंडिया के कंटेक्स्ट में, दैट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है? सो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, इंडिया में भी देखिए, अगर रेडियो की बात करते हैं, टेलीविजन की बात करते हैं, और वैसे ही बाहर की वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखेंगे, तो भी आप कहेंगे कि दैट इज द न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, दैट द बी मोस्टली द राइट आंसर। अगर आपको कहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको मिलता है तो प्लीज गिव इट द रेफरेंस। अगर अगर आपको लगता है कि सिनेमा कहीं पे है, राइट आंसर दिया है और राइट आंसर है सी, तो प्लीज गिव इट द रेफरेंसेस टू मी, डेफिनेटली आई विल लुक ऑन इट। ओके, अभी यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है, ठीक है? जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन में भी मेंशन किया है, दैट इज द बी राइट वन। ओके, हाउ इज द न्यूज़पेपर स्पेस सोल्ड फॉर द डिस्प्ले एड्स। न्यूज़पेपर का जो स्पेस है वो डिस्प्ले एड्स के लिए जो सोल्ड किया जाता है, दैट इज हाउ। एवरीवन, कॉलम इंच, कॉलम सेंटीमीटर, नंबर ऑफ वर्ड, साइज ऑफ द एड इन स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट? yes, very good, that the right answer, C is the right one। okay, Neelam is here, the right answer, it is size of the ad in the square centimeter, right? चलिए,
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ द 24 आवर्स न्यू चैनल इंडिया। देखिए न्यू चैनल का प्लीज आप लोग ध्यान में, सिर्फ क्वेश्चंस देख के मत जाइएगा, क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बार बार बोलूंगा और उसे ध्यान में नोट डाउन कर लीजिएगा, 3 स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। टेलीविजन चैनल्स को लेकर प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सारे टेलीविजन चैनल जितने इंपॉर्टेंट टेलीविजन है उसके प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। जो टॉप डांस इंडिया डांस है, आपके सीरियल्स अभी पूछ दिया गया था, ठीक है। तो ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली दिस ऑल 4 चैनल्स, बट आपको ध्यान में रखना है अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। चलिए, मैच द लिस्ट न्यूज एजेंसी, न्यूज एजेंसी भी से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सीक्वेंस वाला भी ईयर आपको याद होना चाहिए और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। सो न्यूज एजेंसी प्लीज लिस्ट ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सो मैं आपको डिस्कस करा दिया यहाँ पे, क्योडो जो है वो दैट इज ऑफ द जापान, डीपीए जर्मनी, आपका एएफपी दैट इज पेरिस और अल जजीरा दैट इज दोहा कतर, ओके। चलिए, सो लिस्ट ऑफ द न्यूज एजेंसी याद है, किन्हें किन्हें याद है एवरीवन, दैट आई वांट टू नो दैट कि लिस्ट ऑफ द न्यूज एजेंसीज पूरा जो है आपका एक ईयर्स वाइज आपको याद है, ईयर्स वाइज भी और हेडक्वार्टर्स वाइज भी आपको याद रखना है, ठीक है। ईयर्स वाइज और हेडक्वार्टर्स वाइज भी दोनों तरीके से आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस आते हैं न्यूज एजेंसी से, गलत नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए, क्विक रिवीजन में दिया हुआ है वैसे, मीडियम इज द मैसेज, yes, very good. Medium is the masses, that is Marshall McLuhan, Ilyukas, two-step flow theory, Daniel Lerner, modernization approach, ठीक है, empathy, बहुत सारे, और जॉर्ज अबनर, कल्टिवेशन थ्योरीज। चलिए, ओके। सो न्यू एजेंसीज विच केम इन दिस न्यू ईयर्स, ठीक है, कोई ऐसा न्यू एजेंसीज को लेकर आपको नहीं पूछा जाएगा जो जितने पॉपुलर न्यू एजेंसीज है, अगर न्यू एजेंसी से क्वेश्चंस आता है तो आपको लास्ट टाइम जैसे क्वेश्चंस आया था, पीटीआई के आपके प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के आपके चेयरमैन पूछ लिया गया, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, आपके यूएनआई ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यूनिवार्ता ध्यान में रखिएगा, उसके लेकर कमिटीज जो हुई थी वो याद रखिएगा। आप फ्री प्रेस ऑफ इंडिया न्यूज एजेंसीज जो है सचिदानंद का, वो याद रख, सॉरी एस सदानंद का, उनका याद रखिएगा। सो जितने सारे न्यूज एजेंसी से रिलेटेड चीजें हैं वो आप ध्यान में रखेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप कहेंगे तो न्यूज एजेंसी से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन न्यूज़पेपर इज पब्लिश फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से जो पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर का बताइए नाम। विलेज, यानी विलेज इफेक्ट नहीं था, वो ग्लोबल विलेज है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ग्लोबल विलेज था मार्शल मैकलुहान का, नॉट इट ऑफ द विलेज इफेक्ट, ओके। चलिए, इंडियन न्यूज़पेपर दैट पब्लिश फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम दैट इज एशियन इज, वेरी गुड, इट्स इंपॉर्टेंट, एंड दैट वाज लॉन्च्ड इन 1994, इंटरनेशनल एडिशन पब्लिश होता है लंदन के अंदर, इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है। चलिए, यूनिट कम्युनिकेशंस, ठीक है एवरीवन, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The function of mass communication of supplying information regard the processing issues, events, societal development is known as. Very good. Chandra has answered it here, and that the right answer of this question is very good. That is the correlations. Okay. फुल स्क्रीन नहीं दिख पा रहा होगा तो हम इसको अभी फुल स्क्रीन कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, द साइट स्टैंड फॉर, साइट से रिलेटेड एक वीडियोस भी बना हुआ है, प्लीज उसको देख लीजिएगा, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 2 स्टार्स बना लीजिए, साइट को लेकर मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एक बार क्योंकि अभी बहुत टाइम से साइट को लेकर क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, तो दे कैन आस्क यू रिलेटेड टू द साइट ऑल्सो, सेट, ओके, सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आपसे सेटेलाइट का नाम पूछ दें, हो सकता है इसके इसके ईयर आपसे पूछ दें, हो सकता है इसमें कितने नंबर ऑफ द विलेज पूछ दें, नंबर ऑफ द स्टेट्स इन्वॉल्व इन द साइट एक्सपेरिमेंट पूछ दें। तो साइट से रिलेटेड जितना चीज़ें हैं प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, शॉर्ट्स बना हुआ है इसके ऊपर, साइट जेम्स स्टडी हब यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपके पास वीडियोस आ जाएगा और डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज एन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन में से कौन सा है एवरीवन। चलिए, वेरी गुड,
सो वर्बल कम्युनिकेशन डायरेक्टली दूसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में ही क्लियर हो रहा है कि प्रोफेसर शर्मा डिलीवर द लेक्चर इन द क्लासरूम, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए 24 आवर्स इंग्लिश बिजनेस न्यूज चैनल इंडिया, इसमें से कौन सा है? यस दैट इज बिजनेस न्यूज चैनल। ध्यान में रखिएगा पल्लवी, आई एम आस्किंग इट हियर द बिजनेस वन, राइट, नॉट द जनरल वन। सो बीएन बिजनेस है, दैट इज सीएनबीसी। सीएनबीसी का मतलब ही होता है कंज्यूमर न्यूज एंड द बिजनेस चैनल। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सारे एडिटर्स का नाम दिए गए हैं यहाँ पे और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से पेयर करेक्टली मैच नहीं है, यानी 3 जो है करेक्टली मैच है, 1 करेक्टली मैच नहीं है। और इसमें से कौन सा है? यस दैट इज बरखादर, दैट इज एन एनडीटीवी। ओके, चलिए वेरी गुड, एंड ऑल ऑफ द राइट आंसर, एन राम, द हिंदू, प्रणब रॉय, ND24 इंटू सेवन, प्रभु चावला, आज तक। इनके सारे जो है इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, जो भी इनके पॉपुलर प्रोग्राम्स होते थे वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है, उसका भी आपको क्विक रिवीजन सेक्शन में दिया गया है। चलिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ से लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है? दैट इज, यस ऑफ कोर्स, दैट इज दिल्ली। चलिए, एडजस्टिंग द फोटो फॉर पब्लिकेशन बाय कटिंग इज टेक्निकली नोन एज से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था, क्या आप लोगों ने सभी देखा? एवरीवन, हैव यू ओपन द पीडीएफ that we had shared with you, the known as and termed as related type questions? Who has opened the PDF which I have shared yesterday's, the known as and termed as type questions? Jessica has opened that PDF. Other, Gayatri has got it, but I don't know you had opened or not. Other, tell me, give me some report, right? No yet, not yet. ठीक है, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस में आपको दिया गया है, स्टडी मटेरियल में जाएंगे, स्टडी मटेरियल में जाने के बाद वहां पर आपको पेपर 2 के अंदर, आपको एक्स्ट्रा क्लास फोल्डर के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फिल्टर करके क्वेश्चंस दिए गए हैं, असर्शन रीजन काइंड ऑफ क्वेश्चन, नोन एज टर्म्ड एज टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए हैं। आज शायद हम न्यूज एजेंसी से भी आपको अपलोड कर देंगे वहाँ पे, तो आपको न्यूज एजेंसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने अब तक पूछे गए हैं आप एनालाइज करके आप देख के और प्रिपरेशन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ में क्वेश्चन के साथ आपको आंसर मिलेगा, तो प्रिपरेशन करने में आसान रहेगी। फीडबैक ऑफ ए मैसेज कम्स फ्रॉम, जल्दी से बताएंगे। यस, ऑडियंस, ठीक है, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन एडवांस बिफोर डिजाइनिंग द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इज नोन एज, एवरीवन आंसर। चलिए जल्दी से आंसर देंगे। यस ऑफ कोर्स, दैट इज ओपिनियन पोल, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस में आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो फॉर द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, बेटर स्ट्रेटजी, दैट इज ओपिनियन पोल। चलिए, एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द टेलीविजन स्क्रीन, टेलीविजन स्क्रीन के लिए एस्पेक्ट रेशियोज क्या है यहाँ पे, जो बहुत पुरानी एस्पेक्ट रेशियो है, अब एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गई है, दैट इज 16:9, एंड दैट टीवी वी यूज इट, दैट इज 4:3, राइट, वेरी गुड, दैट इज 16:9, नाउ इट इज okay, that is 4 units, that is width, and the height, that is 3 units. Okay, chaliye next. Sorry, DTH service was started in the year, DTH service, direct to home, which was started in the year, that is C। देखिए, ईयर रिलेटेड क्वेश्चन से ना, जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें तो आप गलत करके आइए ही मत। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, कि हो सकता है आपने डिटेलिंग अच्छे से नहीं पढ़ी हो, बट याद करने वाली चीजें मैं आपको बहुत शुरू से ही कह रहा हूँ। डीएमसी क्यूज आपने अगर कर लिया है, दैट इज वेरी गुड। यूट्यूब शॉर्ट्स आपने देख लिया है, दैट इज वेरी गुड। अगर आपने क्विकी सेक्शंस, क्विक रिवीजन्स देख लिया है, दैट्स एन एक्सेलेंट। अगर आपने जो है पीवाई क्यूज सारे अटेम्प्ट कर लिया है, एक भी मॉक टेस्ट आपने नहीं छोड़ा है, दैट इज मोर एंड मोर एक्सेलेंट, ठीक है। तो इन 4-5 चीजें जो मैं आपको बार बार रिपीट करता रहता हूँ, प्लीज आप लोग ये सारी चीजें कवर करके आइएगा। आई एम गिविंग द गारंटी टू यू, 60% आप करके आएंगे, 60% आप बिल्कुल करके आएंगे। कोई भी क्वेश्चन जो है 60% में गलत नहीं होगा, ठीक है, इतना आपने अगर किया है और करके जा रहे हैं तो, ठीक है। सो एक भी मॉक टेस्ट मत छोड़िए, सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, हो सके तो 2 बार 3 बार 4 बार प्लीज एक बार देख लीजिए मॉक टेस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी ज्यादा बार करेंगे उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट बढ़ेगी। चलिए, नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, एवरीवन, वेरी गुड, दैट द राइट आंसर, इट इज 16 नवंबर। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेज वाला भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, प्लीज इससे धोखा मत खाइएगा।
क्योंकि कई बार पूछा गया है, कॉपीराइट डे, वर्ल्ड बुक है, वर्ल्ड बुक्स डे, ठीक है, प्रेस डे, स्पोर्ट्स डे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये सारी चीजें डे वाला जितने क्वेश्चन हैं वो सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे डेज याद कर लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, यहाँ पे चेयरमैन नहीं पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। अगर 29 भी ऑप्शंस में होता है तो 29 नहीं डालेंगे, अगर विथ इंक्लूडिंग चेयरमैन बोलेगा तब 29, राइट, अदरवाइज इट्स 28 ओनली। चलिए नेक्स्ट, राइट टू इम्पार्ट and receive information is granted in the Constitution of the India by the article. Everyone, what is the right answer of this question here? Right to impart and receive information किस में आपको मिलता है? That is, yes, Supreme Court give you this guarantee in the Constitution in India, that is 19(1)(a), जिसको हम freedom of press भी बोलते हैं, okay, और freedom of speech and expressions भी बोलते हैं, and right to impart and receive informations भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए कंफ्यूज नहीं होना, अगर नाम यहाँ पे नहीं दिया गया तो ध्यान में रखिएगा, वही चीजें हैं, क्वेश्चंस घुमाया हुआ है। चलिए, यूज ऑफ रेडियो फॉर द हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ, यूज ऑफ रेडियो फॉर हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशंस ऑफ, yes, very good, and that right answer you had given that here, that is everybody is having access to radio set, is, do you think that this is the radio for the higher education? Yes, it's absolutely. So everybody having the access to radio set is called, is to be understood as an the based on the presumptions, that is higher educations, okay, literacy की बात कर रहे हो आप। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन विद द वन सेल, अपने आप से बात करना, अपने आप से कम्युनिकेट करना, दैट इज व्हाट इट नोन एज, yes, very good, and that we call it as, okay, intrapersonal communication, not the interpersonal communication, ठीक है। चलिए, which broadcasting system for the TV is followed in India? विच ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉर द टीवी फॉलोड इन इंडिया? यस, पाल यूज होता है हमारे कंट्री में, और अमेरिका में एनटीएससी, एनटीएसई, दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। पाल होता है फेज ऑल्टरनेटिंग लाइन, और एनटीएससी होता है नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमिटी, ठीक है। यस, इसमें लाइंस भी इंपॉर्टेंट होता है, कितने कितने लाइंस होते हैं ध्यान में रख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आप मुझे बताइएगा व्हाट्सएप में प्लीज, it's given to you, Chatra, you will be saying that in the WhatsApp group after the class, that the integrated lines in the NTSC and the lines in the PAL, right? ध्यान में रखिएगा, 525 वाला जो लाइंस होते हैं वो आप भेजिएगा कंफर्म करके, so that everybody will be aware of it, that lines, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट नोट्स भी आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो बिफोर 1936 वाज नोन एज, 1936 के पहले ऑल इंडिया रेडियो जो है वो क्या कहा जाता था? यस, दैट इज आईएसबीएस, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, सी इज द राइट वन, ओके, वेरी गुड। चलिए, आकाशवाणी जो है 1957 से, ध्यान में रखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो 1936 से, गवर्नमेंट ने ट्रांसमीटर लिया 1936 में और स्टार्ट किया ऑपरेट करना, दैट इन द नेम ऑफ आईबीएस, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, सॉरी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ओके। चलिए, और ऑल इंडिया रेडियो का नाम किसने दिया? लियोनल फिल्डन ने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया रेडियो से जितना सारा क्वेश्चन है, हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया रेडियो से प्लीज एक बार मैं इंपॉर्टेंट आपको यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस आपको बताऊंगा जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है, प्लीज नोट इट डाउन। पहला, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पूरा एग्जैक्ट एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कवर हो जाएगा। आपको पूरा चेयरमैन ध्यान में रखना होगा लेकिन साथ साथ। दूसरा, न्यूज़पेपर्स वाला जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाला जो वीडियोस है जेएमसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल में, वो जरूर देख लीजिएगा। नंबर 3, साइट एक्सपेरिमेंट का जो जेएमसी स्टडी हब पे यूट्यूब वीडियोस है वो जरूर देख लीजिएगा। नंबर 4, ऑल इंडिया रेडियो से एक यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया गया है, उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है, जितने सारे क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे जाते हैं उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि यूट्यूब शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट्स न रह जाए, एक एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, यूट्यूब शॉर्ट्स जरूर देख लीजिएगा कम से कम जाते जाते, ठीक है। द बिगेस्ट न्यूज एजेंसी ऑफ द इंडिया, यस, एंड दैट राइट आंसर इज हियर, ऑफ कोर्स दैट इज ए, यस,
फाउंडेड इन 1947, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, द पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन लास्ट टाइम पूछा गया था अविक सरकार। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट। चलिए, करंट अफेयर्स का सेक्शन दिया गया है जेम्स स्टडी हब में। प्लीज गो इनटू द वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट jamsstudyhub.com, और लास्ट में आपको यूजीसी नेट के सेक्शन में जाना है और वहां पे करंट अफेयर्स दिया गया है। करंट अफेयर्स सारे आपको दिए गए हैं, नोबेल प्राइज से लेकर पीटीआई, आपके सारे जितने बोर्ड होते हैं, सीबीएफसी वगैरह सब चीजें आपसे वहां पे दिया गया है। क्वेश्चन ना छूट जाए करंट अफेयर्स से, ध्यान में रखिएगा। चलिए, हमारा प्रेस भारती वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। चलिए बता दीजिए, यहाँ पे तो खैर ऑप्शंस नहीं दिया है। प्रेस भारती कब लॉन्च किया गया बताइए, थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। एवरीवन, नाउ थर्ड पीपीटीज आई एम शेयरिंग विथ यू। थर्ड पीपीटीज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जितना समय मिलेगा उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, हमारे पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि सीयूईटी के कंटेक्स्ट में क्वेश्चंस लिया गया था, बट उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपको बताना है। ठीक है, हमारे पास 5 मिनट का समय है। 5 मिनट में हम अगर जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए वो हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, सो एक सेकेंड। चलिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, और बस कुछ नहीं, मैं देखिए पीटीआई का फुल फॉर्म है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं है, आप बस ध्यान में रखिए। पीटीआई, यस, द लास्ट क्वेश्चन 1997, वेरी गुड। आप ध्यान रखिएगा, प्रसार भारती जो है, प्रसार भारती जो है वो 1997 में एक्ट बन चुका था, लेकिन इसकी शुरुआत 1990 से ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक्ट पूछा गया है कि क्या पूछा गया वो ध्यान में रखना है। पीटीआई विच इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पीटीआई का कब स्टार्ट हुआ है, पीटीआई इंपॉर्टेंट है, 1947 में स्टैब्लिश हुआ, 1949 से स्टार्ट किया, फंक्शनिंग स्टार्ट हुई है। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेम 1901 है। ठीक है, चलिए, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट वन, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया बताइए क्या काम करता है। एवरीवन जल्दी जल्दी आंसर देंगे, हमारे पास 3 मिनट 50 सेकंड का टाइम है, हम एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहते। एवरीवन, यस, डिफेंस मैटर। नहीं भैया, डिफेंस मैटर से लेकर कोई चीजें इसमें नहीं है। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया का कोई काम नहीं होता डिफेंस मैटर से रिलेटेड। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, एडिटर मतलब दैट न्यूज़पेपर एडिटर्स, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड है, दैट एसोसिएशन दैट स्टैंड्स फॉर द बी इज द राइट वन। ओके, सी फिट डिफेंस से कोई लेना देना नहीं है हमारा। फीडबैक इज द पॉसिबल इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फीडबैक किसमें, किस, सर्कुलर। ओके, बी, वेरी गुड। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए, सीयूसीटी टाइप का क्वेश्चन है, आपके लिए आसान है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए जल्दी से। वेरी गुड, इक्वालिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पार्टिसिपेटरी होता है क्योंकि सेंटर रिसीवर होता है, टू वे फ्लो होता है, एक्सप्रेशन से इसमें नॉन वोवल वोवल दोनों होता है। चलिए, नॉट ए रियल फंक्शन ऑफ द मास मीडिया, मास मीडिया का रियल फंक्शन में से कौन सा नहीं है। एवरीवन, ABCD, मास मीडिया का रियल फंक्शन। देखिए इस तरीके के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पीआर से, रेडियो से, मास मीडिया से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट होता है ये सब बेसिक क्वेश्चन भी। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर, दैट इज ए। What do you mean by the kinesis, क्या होता है, non-verbal communication, yes, important also here। Meanwhile you are answering, I am telling you the important one, that James Study of YouTube Shorts में type of the non-verbal communication दिया गया है, non-verbal communication वाला भी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। kinesis which is a body language, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, पीटीआई यूनिया, AFP, ये सारी चीजें आपको ये नहीं पूछा जाएगा इतना इजी कि क्या है न्यू एजेंसी, आपसे ये पूछा जाएगा कि इसको अरेंज में करना है, अरेंज में आपको, दैट इज सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, तो प्लीज न्यू एजेंसी को याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, वैसे आपको एक्सप्लेनेशन में दिया गया, यू कैन टेक एज एन स्क्रीनशॉट, सारे पीटीआई आपको डीपीए, जिनहुआ, ये तास वास सब दिया गया है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा में हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है, इसमें 4 ऑप्शन दिएगा, उसमें से आपको बताना है। दादा साहब फाल्के, और अभी दादा साहब फाल्के किसको मिला है लेटेस्ट में, लेटेस्ट में किसको मिला है जल्दी से बताएंगे, वहीदा रहमान को मिला है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, मास मीडिया ऑडियंसेस आर, मास मीडिया ऑडियंसेस आर, मास मीडिया ऑडियंसेस आर, यस,
मास मीडिया का ऑडियंस कोई स्पेसिफिक नहीं होता, एनोनमस, अनगिनत, बहुत दूर दूर तक एनोनमस, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिसेंट फेनोमेना ऑफ द मॉडर्न डे, एवरीवन, मॉडर्न डे मीडिया इन इंडिया, क्या हालात है मीडिया का, रिसेंट फेनोमेनन दैट इज पेड न्यूज, ठीक है, पैसा लो खबर छापो, है ना, यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन ऑफ द पीपल बीइंग मैनिपुलेटेड टू द मैक्सिमम, द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग, and you will tell that how this class was, it was beneficial, we have discussed many of the questions, hope these things has revised to you, ठीक है, and the right answer of this question is here, yes, absolutely, very good, see that persuasive situations. So thank you to all, thank you so much, we had discussed a lot and it was very helpful, I think so. Chaliye, so thank you, we'll meet in the upcoming classes tomorrow and we'll revise more of the questions. Thank you so much once again. Okay, definitely we'll bring you the confidence at the last moment. Okay.